Okay. Mr. Jagabandhu, can I have your introduction, please? Basically, I'd like to know about your current work profile and your AMA categories, work experience and qualification regarding aviation. Sir, sir, I am Hmm. fresher. Sir, I am fresher in college student. Okay, Tuppa you are a Aerospace Engineering fresher. College. Yes, sir. Okay, and how many modules you have cleared regarding B2? You are in B2 or B1 category? Which one? B1, 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 B1 all So module you are clear, sir. so B1 all B1 module total. cleared. Yes, sir. ठीक है, it's good. It's very good. Now you can go for RT. That's a good thing. Yes, sir. ठीक है. If you have, ठीक है, not to say you can continue for RT. That would be better. Have you applied for the exam or will just prepare this time? I will just prepare, sir. Prepare. ठीक है, ठीक है. Good time to go for RT. Once you cleared Yes, all sir. the module, it is helpful that if you applied for RT and you will have RT license, it will be very beneficial. Okay, please do let me know. Do you know the basics of RT or you know nothing about? Have you seen the previous video like I had shared on multiple groups? No, The sir. first demo session. No, अच्छा ठीक है. Ask, ask. Do you know something about RT? No, sir. ठीक है. Okay. Okay, everyone. Let me just brief some introduction of RT to Jagabandhu, and once this briefing will be done, we'll move ahead. ठीक है. And for you guys also, this will be a little briefing of the same thing जो हमने पिछले क्लास में देखा. The same thing will be repeated to you. So no need to get annoyed. We'll just wrap it up in 5 to 7 minutes. ठीक है. चलो. So Yes, while sir. हाँ, while preparing for the RT, first you need to understand the conduct of RT exam. ठीक है. How it is being conducted. What are the agency which are responsible for conducted and how it is being conducted. Exam होता कैसे है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है एंड प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या प्लान रहेगा. ठीक है. नाउ सबसे पहले the organization which is conducting the examination for RT is WPC, Wireless Planning and Coordination Wing under Department of Telecommunication. ठीक है, Department of Telecommunication, and the government order is Ministry of Communication. ठीक है, Ministry of Communication. तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है. अंडर दैट वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग इज देयर which is conducting the exam of RTRA. Now the certain order has come that after 2 or 3 session, it was an order ki after July only, ठीक है, from July only it would be conducted by DGCA, but there is some delay in the plan. They might not have prepared some, you can say, syllabus material or anything, so they are not conducting it, but very soon it will be handed over to DGCA, especially for the RT things. Please do let me know if my screen is visible to you. Screen share हो रहा है? Yes, sir. Or is it? Hmm. So very soon it will Yes. be conducted under DGCA. Once this thing will be go to DGCA, the syllabus I think definitely that will be little changed, and एग्जाम का फीस होने वाला है 7,500 फॉर अपकमिंग 2 सेशंस. लाइक अभी मैं चेन्नई सेशन के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ. इसके बाद अगस्त में दिल्ली एंड क्या कहते हैं अक्टूबर में हैदराबाद. अक्टूबर अगस्त में दिल्ली एंड अक्टूबर में हैदराबाद, ये 2 सेशन आपको आएंगे जहां पे WPC के अंदर में ही एग्जाम होगा. और उस दोनों सेशन में आपके एग्जाम का फीस रहेगा 500 रुपीज. बट जो DGCA का सर्कुलर है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द चार्ज. 7,500 इज गोइंग टू बी द फीस एंड नॉट ओनली द फीस implications. ठीक है. दिस विल बी old students also say pay little attention, like all three who were present in the previous session. आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे. Not only the fees is going to increase. अभी तक WPC का एग्जाम कैसा है कि सपोज आपने चेन्नई सेशन में अटेंड किया एग्जाम, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप जाओ हैदराबाद सेशन का एग्जाम दे के आओ. हैदराबाद भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, दिल्ली का दे लेंगे. जितने बार भी फेल हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ओपन है. बट अभी इसमें रूल लगने वाला है मॉड्यूल जैसा.
अगर आप डीजीसीए के अंदर में जो एग्जाम कंडक्ट होगा, अगर आप एक बार एग्जाम फेल हो गए, ठीक है, तो 3 महीने तक दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते। फिर अगर कंटिन्यूअस 3 बार फेल हो गए तो 1 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते। एज सिमिलर एज डीजीसीए वाला सिस्टम वो लेके आ गए हैं। बट एक्चुअल में जब रिस्ट्रिक्शंस आएगा, जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आएंगे, तो कितने दिन का रिस्ट्रिक्शंस उन पे इम्पोज होगा, कितने दिन तक उनका एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट लॉक होगा, ये हम लोग क्लियरली तभी बता पाएंगे जब किसी का प्रोफाइल लॉक हो। लाइक आप लोग मॉड्यूल दे के आते हो, तो कई बार देखते हो कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन कई बार होता है आप एक मॉड्यूल फेल होते हैं तो 60 डेज के लिए प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगा। कंटिन्यूअस किसी किसी का 90 डेज, देन 1 ईयर। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कौन कितने दिन के लिए एग्जामिनेशन के लिए ब्लॉक होगा ये डिसाइड करेगा डीजीसीए। बट ऐसा रूल है, उनके पब्लिकेशन में पब्लिश किया गया था कि अगर आप फेल होते हो अंडर डीजीसीए, नॉट नाउ, डीजीसीए ने अभी एग्जाम लेना शुरू नहीं किया है, अगर आप फेल होते हो तो आपको 1 महीने तक एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आप दूसरा एग्जाम दे सकते हो। और अगर 3 बार फेल हो गए तो आपका ये पे किया हुआ फीस 7500 कंज्यूम्ड, पूरा कंज्यूम्ड, फिर फ्रेश फीस पे करो और दोबारा से एग्जाम देना शुरू करो। ठीक है, तो ये सब इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं अंडर डीजीसीए। सो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नाउ। जब तक डब्ल्यूपीसी एग्जाम ले रहा है, थिंग्स आर अंडर हैंड, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिपीट। ठीक है, जो इनका सेट ऑफ पैटर्न है पुराना, हर चीज रिपीट होगा। थिंग्स आर अंडर कमांड, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हो। एम आई क्लियर टिल नाउ? ये चीजें समझ में आई आपको? Yes, sir. ओके, Yes. नाउ हाँ, नाउ विल ब्रीफ अबाउट द आरटी एग्जाम विच इज अ पार्ट अंडर डब्ल्यूपीसी। अभी तक जो एग्जाम का पैटर्न है मैं उसको पहले ब्रीफ करता हूं। ठीक है, आरटी के एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, बोथ ऑफ द पार्ट्स विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल टाइम स्लॉट, सिंगल डे, एक ही दिन में एक ही टाइम स्लॉट में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 आज दे लिए, पार्ट 2 के लिए परसों आएगा या 5 दिन बाद बुलाएगा। नो, आप एग्जाम देने जाओगे, जैसे ही आपका पार्ट 1 का एग्जाम खत्म हुआ, अगर आप पार्ट 1 पास करते हो तो आधे से 1 घंटे का मैक्सिमम ब्रेक मिलेगा और पार्ट 2 आपका ले लिया जाएगा साथ ही साथ, एक ही टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट, इस एग्जाम में किसी भी टाइप का क्रेडिट सिस्टम नहीं है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज आपने पार्ट 1 पास कर लिया और पार्ट 2 फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम में आपको सिर्फ पार्ट 2 ही देना पड़ेगा, क्या? नहीं, नेक्स्ट टाइम में आपको दोनों एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, कोई भी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं है कि एक बार में पार्ट 1 पास कर लिए, अगली बार में खाली पार्ट 2 देना है। नो, दोनों पार्ट दोनों बार में देने पड़ेंगे। जब भी एग्जाम दो, दोनों पार्ट एक साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का क्वेश्चन टाइप कि पूछता क्या है, होता क्या है। अभी तक डब्ल्यूपीसी ने कहीं पर भी एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कोई सा भी बुक, कुछ भी सर्कुलर लॉन्च नहीं किया है कि आप ये पढ़ के आ जाओ हम इसका एग्जाम लेंगे, या ये हमारा एग्जाम पैटर्न है हम इसका एग्जाम लेंगे। नहीं, कभी भी इन्होंने सर्कुलेट नहीं किया है। हो सकता है व्हेन इंटरनेट वाज नॉट देयर इन इफेक्टिव मैनर, लाइक लेट 90s वगैरह में उन्होंने कोई सर्कुलर पेपर फॉर्मेट में पब्लिश किया हो, पैटर्न वही चला आ रहा है, बट किसी भी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है कि पढ़ना क्या है और पूछेंगे क्या। बट एक चीज श्योर है कि जिस एग्जाम पैटर्न को वो लास्ट 20-30 ईयर्स से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता है अभी भी, और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द सैंपल पेपर ऑफ पार्ट 1 क्वेश्चन। पार्ट 1 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा का पूरा पार्ट 1 का सैंपल पेपर है। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पार्ट 1 में, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल आधे घंटे का रफली आपको टाइम मिलता है, बट टू बी प्रिसाइज्ड 25 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है अलाउेबल। 5 मिनट आपका सिग्नेचर में, क्वेश्चन पेपर रिसीव करने में, हेडफोन और माइक सेट करने में निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट्स का एक्चुअल टाइम, 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स एंड फुल मार्क्स फॉर द पार्ट 1 एग्जामिनेशन इज 100
50 इज द पासिंग मार्क्स। अगर आप 50 स्कोर कर लेते हो आप पास कर दिए जाओगे। किसी भी टाइप का कट ऑफ सिस्टम नहीं है कि इस बार 70 के बाद वाला पास हो रहा है या इस बार कट ऑफ 75 चला गया, जैसा इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में होता है वैसा नहीं। 50 and above, if you are able to score, you will be treated as pass. Very simple. Next. अभी तक जो हम एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, we might had observed कि सपोज आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको फर्स्ट का आंसर नहीं आता है तो फर्स्ट को छोड़ दो, we'll direct jump to question number second, we'll direct jump to question number third. Whatever the answer we know, we'll do it first. But WPC says if you don't know the answer of question number first, you cannot go to question number second. All answers shall be completed in ascending order only, one by one. Till the time you won't be able to answer question number first, you cannot jump to question number second. And while answering the questions, we should write the essay answer type. Essay answer type का मतलब होता है you should write the answers. ठीक है, you should write the answers in paragraphs. ठीक है, आपको पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में आंसर लिखने होते हैं, एमसीक्यू नहीं है। इसके आंसर ऐसे टाइप आपको लिख लिख के आंसर करना पड़ेगा। बट only writing of the answers is not sufficient for part 1. You need to write as well as you need to speak out your answers. Whatever you are going to write, you need to speak simultaneously, एक साथ। No up down, no forward backward, कोई आगे पीछे नहीं होना है। Both of the actions to be performed simultaneously. जो जो बोलना है वही वही लिखना है। It means जो लिखना है वही बोलना है। ठीक है, This is the exam type of and answer type of part 1. Now, one more very important thing. Till the time whatever the exam you have given, you might have seen कि आपके एग्जाम रूम में only one invigilator is there and you are having almost 20 to 30 students out of giving the examination. But in the RT, ठीक है, in the RT, one student shall be allotted to one examiner. हर एक स्टूडेंट के पीछे एक एग्जामिनर। Each student will have one examiner, separate, one-on-one monitoring, and they can see you from your back. ठीक है, they can observe you from your back. You will be facing forward, they'll also facing forward, so that they can observe you from your back. ठीक है, your writing, your speaking, everything they can observe. So this was the exam conduct of part 1. Please do let me know if part 1 exam type is clear for all. समझ में आया पूरा पार्ट 1 का एग्जाम पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर मिस्टर जगबंधु, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear, ठीक sir. ठीक है। नाउ विल लुक एट द पार्ट 2. व्हाट इज स्पेशल इन पार्ट 2? Similarly, like part 1, once you clear the part 1, you need to go for the part 2 examination. Part 2 examination is your oral type examination, your viva, whatever you are giving in your college type times. ठीक है? Now, this examination is such कि there will be two examiner. One belongs to DGCA and one belongs to WPC guy. ठीक है? Now, both of the examiner will not sit together. You need to sit in front of DGCA for 15 minutes and in front of WPC for 15 minutes. Separate. एक ही टेबल पे एक साथ नहीं बैठे रहेंगे. One you will face the DGCA and another time you will face the WPC for 15 minutes. There they'll conduct the interview, oral type examination. Why I'm saying interview? Because that the question they are going to ask, that will belongs to your current role profile. If you are an engineer, the question will be related to engineering background. If you are a pilot or flying student, the question will be related to the operations. If you are a college student, trust me, they are going to ask about basic tools, basic testers, or if you have ever seen the aircraft, if you have ever seen the airports, such questions. If you are working in helipads, they are going to ask about the helicopter operations and all. ठीक है? So in part 2, they are going to ask about your current role profile. Whatever the role profile you are in, simply you need to say that yes, right now I am a student
so that they can ask you the question regarding the student profile. They can ask you question from electronics, they can ask you question from instruments, they can ask you some basic aircraft system. ठीक है, there are rumor in the market. ठीक है, many students are saying कि RT is very much tough, very much tough. They are failing for 8 times, 6 times, 5 times. But trust me, with us, with my institution, whatever the students has prepared, if they had gone for the examination, they had performed better than ever. Even I am surprised कि how much rumor it was spread in the market कि RT is this much tough, RT is this much tough. ठीक है, so sometimes people ask you to tell certain kind of lies. What kind of lies? They'll tell you कि when examiner ask कि आपका करंट प्रोफाइल क्या है, या आप ये पहली बार आरटी दे रहे हो या दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, सो दे आर सेइंग कि डोंट से दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, से कि दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, सो दैट दे कैन शो सर्टेन काइंड ऑफ मर्सी. वो आप पे थोड़ा सा दया दिखाएंगे. क्यों? व्हाई दे विल शो सर्टेन काइंड ऑफ मर्सी टू अस? एम आई रिलेटिव ऑफ हिम? मैं क्या उसका दामाद लगता हूं कि वो मेरे पे दया दिखा देगा कि आप तो तीसरी बार एग्जाम देने आ गए हो, आपको तो पास करके ही भेजूंगा? नहीं. Doesn't matter whether this is your first attempt or second attempt. If you are perfect to the examiner, ठीक है, if you are able to answer, they are going to pass you. ठीक है, so don't believe on this kind of statement given by, I'll not say कि given by many of the instructors or teachers in the market. बस students told me कि सर, उन सर ने बोला था कि आप फर्स्ट टाइम मत बोलो, सेकेंड टाइम मत बोलो, वो पास नहीं करते. नो. ठीक है, I had many examples who had cleared in the first attempt. How they had made it? ठीक है, so don't ever say and don't ever lie to examiner. ठीक है, like some will say कि even if you are a student, don't say you are a student, they won't pass you because they feel कि you are a college student. I had many examples, people had passed RT in college times. ठीक है, so if someone is saying to make a lie कि बोल दो कि मेरा नया नया जॉब लगा है सर, RT जरूरी है. No. Whatever your current role is, simply tell to the examiner in part 2 so that they can ask the question according to your intelligence. If you are a student, how I can ask you question like an AME? How I can like you question like a pilot? You are a student. I know you are a student. So the questions will be asked according to your role profile. In part 2, the interview will be conducted based on your current role profile. ठीक है? Is that clear to everyone? Yes, sir. ठीक है. So basically, be honest in the RT and be disciplined. Follow the plan, whatever I am going to tell you, you are definitely going to make it. Okay, I have many examples. Later on, I will show you the testimonials also. The students who has cleared the examiners, I had asked for the feedback. They had given many. So I'll share you later on that also. Now, कितने दिन तक मैं पढ़ाऊंगा एंड विद अस व्हाट इज द प्लान फॉर द प्रिपरेशन, व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर द आरटी एग्जामिनेशन? I'll conduct this class for 25 days non-stop. No Saturday, Sunday, no breaks. ठीक है? In case if there is any emergency condition, I'll let you know कि today I want to be available. Or if you are in emergency condition, you can also let me know कि sir today I want to be available. ठीक है? 25 days का classroom program है. Hardly it will be started on a fast track mode from 15th मई के बाद से क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, 25 दिन का लेक्चर प्लान है. डेली नाइट में 9 से 11. ठीक है, नो अदर टाइमिंग्स आई एम हैविंग. ठीक है, आई एम ऑल्सो वर्किंग इंजीनियर इन सम कंपनी, सो आई डोंट हैव टाइमिंग free times in other schedules. ठीक है, I work in a day schedule 9 to 5 job, so I have only available time evening 9 to 11, no other timing available. However, if you are working in a schedule airline or if you are planning to work in a schedule airline, if there is a shift कि रात में नहीं पढ़ पाऊंगा, so recorded lectures will always be there. ठीक है, so that you can manage the plan and all. But I'll suggest कि be present for a month, attend the 25 lecture, you are going to make it. ठीक है, and the fees for the plan is 4500, which is very less in comparison to any of the institutions which are training for the RT. सबके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कम फीस है. इवन इफ यू इंक्वायर समवेयर
If you ask some of your friends, you will be able to know how less this fees is. So 4,500 is the fees. This is one time payable. If you have paid once, you can continue for the how many sessions you want to be present there in RT. But if you will be sincere, I must say कि 2 सेशन से ज्यादा आपको पास होने में नहीं लगेगा. ठीक है? And study materials and all will be given to only the students who will take admission. ठीक है? This time there are 2 WhatsApp groups I had kept. One is for enrollment and one is for the preparatory plan. Once the class will be started, admitted students will be shifted to another WhatsApp group जहां पे आपको लिमिटेड 8 से 10 स्टूडेंट मिलेंगे मैक्सिमम, ताकि आपका प्लान हो सके पढ़ाई के लिए बेटर. आपको जब भी कभी भी डाउट हो, इमीडिएटली टेक द स्नैपशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, ड्रॉप इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आस्क द डाउट्स. ठीक है? स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर मच इनफ एंड मच प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट. ठीक है? आरटी के प्लान के हिसाब से काफी सफिशिएंट और काफी प्रिसाइज स्टडी मटेरियल जो मैंने बनाया है अभी तक तो इफेक्टिव है. ठीक है? स्टूडेंट्स आर मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ इट. तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है. कुछ भी आपको कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हो पाए आपको लगता है कि 2-3 जगह से क्वेश्चंस जुटा के पढ़ने चाहिए, इट विल ऑलवेज यूजफुल, बिकॉज आपका अपना प्लान हो सकता है, आपका अपना पढ़ने का तरीका हो सकता है. तो आप 2-3 इंस्टीट्यूट से मटेरियल जुटा के, व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर डॉक्यूमेंट से जुटा के पढ़ो. I'll definitely go for that कि आपका अपना तरीका है. I'll definitely add a positive note कि आप सही हो, आप पढ़ो. But for us, whatever the material will be given to you, those are much sufficient. तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा. ठीक है? Hope I am clear for the conduct, exam type and syllabus for RT, as well as I am also clear about the study plan with us, what we are going to see in upcoming month if you are joining our classroom. Am I clear about everything? Yes, sir. Anyone has any doubt, any type of doubt, any kind of questions if you want to ask? Feel free to ask. Don't worry. Jagabandhu, do you have any kind of doubt, any kind of question you are having in your mind? Don't be hesitate. Ask freely. No, sir. No, sir. No, sir. No. ठीक है. ठीक है. So, if you continue for a month, trust me, result is going to be yours. And see, I'll say one more thing, especially for you, Jagabandhu. Generally, I denies to the college students, ठीक है? Because their modules are not cleared. I am very sure from my side, and I always suggest positive thing to students कि आपका मॉड्यूल पहले जरूरी है. RT is having no extra benefit if you don't have clear your modules. ठीक है? बट आपके सारे मॉड्यूल पास है. इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर. ठीक है? बेस्ट टाइम फॉर यू. आस्क एनीवन, आस्क एनी इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है? किसी भी टीचर से पूछो, सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू. आपने चलो मुंबई सेशन चेन्नई सेशन का एग्जाम नहीं भरा है, कोई बात नहीं. प्लान फॉर द सेशन, 1 महीने का जो सेशन प्लान है आप पूरा पढ़ाई कर लो. नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दिल्ली आएगा उसमें आप अप्लाई कर देना. ठीक है? यू आर गोइंग टू सी 2 बार जो आप सेम सिलेबस को पढ़ोगे ना, you are going to make perfect in your single shot. दूसरे बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है? So it's a best plan. Many of the student had did, not many, 3-4 स्टूडेंट ने तो ऐसा किया कि पहले उन्होंने 1 महीना पूरा पढ़ाई कर ली और उसके बाद फॉर्म का भरा. So that people are hesitating also, ताकि आपको भी लगेगा कि सिलेबस में क्या था कि आरटी को इतना हाइप बनाए हुए हैं, क्या पढ़ना था कि लोग इतना डरे हुए रहते हैं. ठीक है? So I'll suggest you to go for the study plan. ठीक है? Generally I avoid college students. मैं उनको मना कर देता हूं कि आप पहले मॉड्यूल पास करके फिर आओ. ठीक है? So today we are going to open the syllabus and I'll start with certain topic. ठीक है? I'll suggest to every students whenever you are sitting in the class, please be available with pen and paper. ठीक है? I can understand कि कुछ लोग रैंप पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का शिफ्ट होता है, तो उस टाइम पे वो आंसर नहीं कर सकते हैं. दैट टाइम यू कैन लेट मी नो कि राइट नाउ आई एम वर्किंग, आई एम एट एयरक्राफ्ट ड्यूटी, आई कैन नॉट राइट. सो आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट योर करेंट सिनेरियो. तो मैं आपसे राइटिंग के लिए वैसा कुछ पूछूंगा नहीं, आपसे क्लास में क्वेश्चन ज्यादा नहीं करूंगा.
बट आई सजेस्ट कि पेन एंड पेपर आपके सामने हो, इट विल बी बेस्ट। ठीक है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती। ठीक है, so I am going to start the syllabus. We'll take a break of 2 minutes. We'll start continue the syllabus from 2128. ठीक है, after 2 minutes we'll start with our plan. तब तक आप चाय पानी कॉफी whatever is available with you have it. ठीक है, we'll continue after 2128. सर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। Yes, yes, yes. Okay, okay, thank you. थैंक यू, थैंक यू So सर। I'll suggest कि be available with pen and paper always. छोटी सी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड in initial 4 to 5 lectures there will be complete theoretical session. आपको लगेगा कि आरटी जैसा तो कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, पूरा तो बुक का चीज पढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट मी, द फाउंडेशन यू आर गोइंग टू मेक इन इनिशियल 4 to 5 days और 7 to 8 days वट एवर यू आर गोइंग टू टेक अ वीक, वो फाउंडेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है। सी, you cannot make 3 4th floor building in a single day. 4 story building, 6 story building you cannot make directly. First you need to make your foundation, that will be very strong and it takes time. 20 दिन 25 दिन लगता है फाउंडेशन बनने में। आफ्टर दैट यू कैन एड ब्रिक्स एंड मेक मल्टीपल फ्लोर्स। ठीक है, सो इनिशियली 5 से 6 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ किसी भी टाइप का छोटी सी छोटी चीजें पार्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपका ओरल होगा, जो आपका वाइवा होगा। ठीक है, आफ्टर दैट द सिनेरियो विल कम कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन टाइप आंसर टाइप वैसा वाला आएगा टाइम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लो। हाउएवर whatever the material I am going to use in the class, I'll definitely share you through the WhatsApp group and through the drive link. आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपका ड्राइव लिंक में मैप करवा दूंगा, आपको सारे मटेरियल दे दिए जाएंगे। बट डोंट रिलाई ऑन द नोट्स दैट आई एम गिविंग टू यू। ठीक है, आपका नोट आपका स्टाइल, जो नोट मैंने बनाया है, जो क्लास का स्लाइड मैं यूज करूंगा, वो मैंने अपने हेल्प के लिए बनाया है ना, कि मेरे को पढ़ाने में आसानी हो, या फिर अपने तरीके से बनाया है कि मैं कैसे समझूंगा उस चीज को। बट जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप अपना नोट अपने स्टाइल से बनाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उस चीज को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, सो वट एवर द मटेरियल आई एम गोइंग टू शेयर, डोंट टेक प्रिंट आउट एंड कीप इट विद यू, नो, ट्राई टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम एट योर ओन साइड। ठीक है, हर एक आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लिखा हुआ भी रहेगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, तो नोट बनानी आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आपको बनाना चाहिए ताकि आपका प्लान में किसी भी टाइप का इश्यू नहीं हो। हाउएवर एवरीथिंग विल बी शेयर्ड, लेकिन उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, नाउ the very first topic I am going to start, that is known as radio station. What is radio station?
कंफर्म इफ स्क्रीन इज बीइंग विजिबल। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ठीक। यस सो रेडियो स्टेशन, अभी देखो, any device or any system, any device means any single unit, or any system means a group of unit having multiple units, like HF communication system, VHF communication system। क्या रहता है इसमें? एक एंटीना रहेगा, वायर रहेगा, LRUs होंगे, ठीक है, स्पीकर रहेगा, ऑडियो कंट्रोल पैनल्स रहेंगे। एयरक्राफ्ट में ऑडियो कंट्रोल पैनल से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। LRU रहेगा आपका, VHF रिसीवर, ट्रांसमीटर, स्पीकर रहेगा आउटपुट के लिए, एंटीना रहेगा ट्रांसमिशन के लिए, वायर रहेगा आपका क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या बीच में रूटिंग के लिए। तो ये सब हो गया आपके सिस्टम्स। सो एनी सिंगल डिवाइस और एनी सिस्टम, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस which is having capability to establish communication with ATC or on radio telephony is known as radio station। जो कोई डिवाइस या सिस्टम अगर हमारी ATC से बात करवा सकता है तो वो कहलाएगा रेडियो स्टेशन। ठीक है। सर्च स्टेशंस इनकॉर्पोरेट्स, इसमें क्या क्या आते हैं? सारे ATC के ऑफिसेस। ATC में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, मैं पढ़ाऊंगा। तो ATC के सारे ऑफिसेस, ATC में जितने सारे डिपार्टमेंट है, अगर उनके पास अलग अलग रेडियो सिस्टम है तो सब के सब रेडियो स्टेशन कहलाएंगे। सारा का सारा एयरक्राफ्ट अपने आप में रेडियो स्टेशन कहलाता है। ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर्स, एयरपोर्ट पे फॉलो मी के व्हीकल होते हैं, ठीक है, इसको एयरपोर्ट पुलिस बोलते हैं। मींस एयरपोर्ट पे अगर कोई ऐसा भी सिस्टम है या व्हीकल है जिसमें हम रेडियो के इक्विपमेंट लगा देते हैं तो उसको भी बोला जाता है रेडियो स्टेशन। पोर्टेबल हैंड हेल्ड यूनिट्स, मतलब आपका वॉकी टॉकी। अगर कोई वॉकी टॉकी है और वो हमारी ATC से बात करवा देता है, दैट विल आल्सो कम्स अंडर रेडियो स्टेशन। कहने का मतलब किसी भी टाइप का डिवाइस अगर हमारी ATC से बात करवा पाता है तो वो कहलाएगा रेडियो स्टेशन। मैं क्लियर? यस सर। हमारे मोबाइल में भी होता है FM, ठीक है, बट आप सेट करने की कोशिश करना अपना VHF फ्रीक्वेंसी क्या है। एविएशन में 1182 137 बेसिकली 118 से 137 मेगाहर्ट्ज, 136.95 जो आप बोलते हो। तो VHF फ्रीक्वेंसी एविएशन में ATC का हमारा है 1182 137 मेगाहर्ट्ज। तो अगर कोई डिवाइस इस पे ट्यून हो जाएगा तो वो कहा जाएगा रेडियो स्टेशन। आपके मोबाइल में भी FM होता है, लेकिन वो आप क्या सुनते हो? 98.3 रेडियो मिर्ची, 101 विविध भारती। आप कभी 118 ट्राई करना, उसमें ट्यून ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी के मोबाइल में ट्यून हो पाता है, वो मोबाइल भी है रेडियो स्टेशन। क्लियर? सो RT communication is basically being performed in between two radio stations। ठीक है, जो कोई लोग आपस में बात कहलाएंगे, बात करेंगे, हर एक इंडिविजुअल को बोला जाएगा रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन A, रेडियो स्टेशन B, स्टेशन C, स्टेशन D। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रेडियो स्टेशन। नाउ your aircraft is the radio station. In part 2, examiner may ask you how your aircraft is the radio station. So you can say, sir, our aircraft is also able to communicate with ATC. So my aircraft is also a radio station. The biggest example for the aircraft is radio station is your aeromobile license. People who are working, they can know what is the aeromobile license. But if you are a college student, let me tell you, एयरक्राफ्ट में जितने भी टाइप के रेडियो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उन सब का एक लिस्ट और उनके एक यूजेबल फ्रीक्वेंसी का लिस्ट बना के WPC को देना पड़ता है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को कि सर हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसमें ये सारे इक्विपमेंट लगे हैं, इस कंपनी के इक्विपमेंट हैं, इतने क्वांटिटीज में लगे हैं और उनका यूजेबल फ्रीक्वेंसी ये रहा। तो एयरक्राफ्ट के रेडियो इक्विपमेंट्स के लिस्ट, उनके क्वांटिटीज और उनके फ्रीक्वेंसीज, ये लिस्ट बना के हम देते हैं WPC को। वो WPC इसको अप्रूव कर देता है। देखो है ना, डिप्टी वायरलेस एडवाइजर चेन्नई का, इन्होंने अप्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं एरोमोबाइल लाइसेंस, कि एयरक्राफ्ट के
स्टेशन में कौन कौन सा लाइसेंस है। तो पहले इसको बोलते थे एरोमोबाइल लाइसेंस। मोबाइल मतलब होता है विच कैन मूव, समथिंग कैन मूव। तो एयरक्राफ्ट वाज मोबाइल, वो घूमता है इधर उधर, मूवमेंट कर सकता है, तो एरोमोबाइल लाइसेंस था वो। बट that has been changed to aircraft station license. Your aircraft is also a station. Is that clear to everyone? Yes, sir. And this automobile license is being issued by Wireless Planning and Coordination Wing. Don't worry, while preparing for the part 2, we are going to study the WPC licenses or automobile license in brief. But for now, just understand कि आपका एयरक्राफ्ट भी एक स्टेशन है एंड दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हालांकि नो कॉपीराइट्स बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, शेयर शेल नहीं कर रहा हूं, आपको बस देखने के लिए दिखाया, ठीक है। So this is WPC Rumal license, and there are multiple diagrams I am going to use in classroom to explain certain things to you very clearly, जो कि रियल वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट में कैसा दिखता है, कहाँ से कैसा उसको ऑपरेट करते हैं, हर चीज मैं आपको शेयर करूंगा so that you can have clearly vision about the topics. So first, aircraft station. Hope that topic is clear to everyone. Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. Now, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ 4 Ws। ठीक है, रूल्स ऑफ 4 W, 4 W। कौन कौन से 4 W वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, रूल्स ऑफ 4 Ws, W1, W2, W3 एंड W4। W1 says whom are you calling। ठीक है, W2 says who are you, W3 says why are you and W4 says where are you। तो 4 W कौन कौन से हो गए, whom, who, why and where। Now suppose I want to call you, I want to call Vikas। So the general protocol of the call is I'll dial the number in my mobile phone, ठीक है, and if Vikas picks up the call, then I'll tell hello Vikas, Ankush this side, I want to talk to you about certain kind of job। ठीक है, तो हमने क्या बोला पहले, हेलो विकास, अंकुश दिस साइड, आई वांट टू टॉक टू अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स। तो हमने जिसको कॉल किया पहले उससे कंफर्म किया कि वहां पे विकास ही है या विकास के मदर ने फोन उठाया, विकास के फादर ने फोन उठाया या उसके किसी फ्रेंड ने फोन उठाया। उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन बोल रहा हूं, मेरा नाम अंकुश है। क्यों कॉल किया मैंने कॉल किया आपसे इस चीज के बारे में बात करने के लिए। So this is a protocol of communication. Whenever you are calling, you need to follow certain kind of protocol. What is that? The station you are going to call, आपको जिस भी ATC से बात करनी है, first tell the name of that ATC. That will be comes under W1. Then introduce yourself. Who are you? आपका कॉल साइन क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आपका आइडेंटिफिकेशन या आपका कॉल साइन हो जाएगा एयरक्राफ्ट का कॉल साइन, विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक, विक्टर टैंगो जूलियट जुलू डेल्टा, लाइक दिस। ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कॉल, क्यों किया आपने कॉल, वो आप बताओगे। एंड W4 इज वेयर आर यू। दिस वेयर इज नॉट अबाउट योर पोजिशन, दे आर नॉट आस्किंग योर लोकेशन। दिस वेयर मीन्स द फ्रीक्वेंसी और चैनल व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, कौन सा फ्रीक्वेंसी सेट करके आपने एयरक्राफ्ट में इस स्टेशन को कॉल लगाया। सो दिस इज रूल्स ऑफ 4W। ठीक है, you can note all those 4W or if you are on mobile you can take a screenshot, however I'll definitely share this note once you admitted। क्लियर है सबको रूल्स ऑफ 4W। Yes, sir. ठीक है, ये I'll share one of the, एक सेकंड हाँ, एक सेकंड यस 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 यस, ये W4 का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे देखिए W1 में है कि आप किस टावर से बात कर रहे हैं, W2 में आप यस, अपना हाँ, आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, W3 ठीक में है, आप किस चीज के लिए कॉल कर रहे हैं, यस, और पर्पस, W4 हाँ पर्पस। सपोज कि अगर कोई एयरक्राफ्ट, मतलब अभी इतना तो डीप में नहीं जाना चाहिए बट मेरे दिमाग में वही है हाँ, तो नहीं मैं नहीं, वही गो बोलूँ। गो आस्क, यस यस, तो प्लीज प्लीज।
कि अगर मान लो कि वहां पे ग्राउंड रन है, ग्राउंड रन की हाँ परमिशन हाँ। लेनी है, तो ये 4 हम्म, पॉइंट जो है वेयर आर यू, तो इसमें फ्रीक्वेंसी यूज करके क्या बोलना है, अपना बता लोकेशन बता मतलब। बताता हूँ, वेट, ओके। ठीक है। दैट विल बी क्लियर फॉर यू, आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। दूसरे जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। W4 ओके। says where are you, दिस इज नॉट योर पोजीशन, दिस इज नॉट योर लोकेशन। आप किस जगह पे खड़े हो, एप्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, स्टैंड क्या है, ये सारा का सारा W3 का मैटर है। तो W4 कहां से आया? सपोज आपको बेंगलोर के टावर से बात करना है और उसका फ्रीक्वेंसी है 118.5, तो आप एयरक्राफ्ट में सेट करते हो 118.5, तो कॉल लगेगा बेंगलोर टावर को। अगर आपने सपोज 127.5 सेट किया, तो हो सकता है कॉल लग जाए बेंगलोर के अप्रोच वाले एटीसी को। ठीक है। सो जब हम एग्जाम राइटिंग करते हैं, जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं, उस टाइम पे W4 का यूज करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी को यूज करके हमने बेंगलोर टावर को कॉल लगाया। बट इन रियल लाइफ सिनेरियो W4 का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ओमिट कर देते हैं, ये एब्सकॉन्डिंग होता है, हटा लिया जाता है। ठीक है। अब अब आई बात कि जैसे हमने बेंगलोर टावर को कॉल किया, सो I'll take you one example of ground run only. ठीक है, beginners don't be hesitate, it will come to you. It was a doubt of one student, so I'm explaining it. ठीक है, you don't be surprised, this will come to you automatically after 3 to 4 lectures, don't be worried. Suppose I want to call Bangalore Tower and I need to seek the permission for ground run. So the process is, you need to say Bangalore Tower, Victor Tango, Victor Romeo Lima on 118.5, currently position on stand number 3, request engine ground run on idle power for 10 minutes. तो वो जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज किया ना, उसको यहां पे यूज किया W4 को। W1, W2, पहले W4 देन W3, ये मैं आपको इमीडिएटली पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक के बाद यही हम पढ़ाएंगे कि कैसे W4 का यूज W3 से पहले किया जाता है। ठीक है, बट यूज कैसे करना है वो आपको यहां से पता चल गया होगा। एम आई क्लियर? यस यस। ठीक है। सो दिस फ्रीक्वेंसी टू बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर योर कॉल साइन, कि मैं बोल रहा हूं विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लीमा, और जो मैंने फ्रीक्वेंसी सेट किया वो है 118.5। नाउ इस तीनों चीजों से इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा कॉल सही स्टेशन पे लगा है। ठीक है, नहीं तो पता चला हम अंधाधुन ग्राउंड रन का परमिशन कॉल दे दिए, फ्रीक्वेंसी गलत सेट हो गया था, कॉल बेंगलोर के बदले कहीं दूसरे स्टेशन को लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। नाउ आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। सपोज विकास से मेरी लड़ाई हो रखी है, या फॉर एन एग्जांपल, फॉर अ नेमसेक लेट्स से पर्सन इज कृष्णा और एनीवन, मेरी इससे लड़ाई हो रखी है। ठीक है, टू बी फ्रेंडली, वेरी नॉर्मल सिनेरियो समझो, मुझे कॉल करके इनसे झगड़ा करना है। ठीक है, तो जनरल क्या होगा, आप कॉल करोगे और डायरेक्ट गाली देना शुरू कर दिए। बट पता चला कि कॉल इन्होंने नहीं रिसीव किया था, कॉल रिसीव किया था इनके फादर ने या इनके मदर ने। तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि कैसे कैसे दोस्त आपने पाल रखे हैं, गाली से बात करता है। या फिर जो आपका मेन एम था कि लड़ाई मुझे करनी है कृष्णा से, कॉल लग गया सपोज विकास को, तो आपने जब 2 मिनट कंटिन्यूअस गाली दे ली, फिर उधर से बोलता है कि रॉन्ग नंबर, मैं तो विकास बोल रहा हूं। या कई बार ऐसा होता है ना, आप फोन करके कुछ बोलते हो तो उधर से बोलता है कि गलत नंबर डायल हो गया है। तो गलत नंबर डायल नहीं होना है, इसी के लिए हम कॉशियस होंगे और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे कि कॉल करना किसको है, आप कौन हो और फ्रीक्वेंसी कौन सा बनाया। ठीक है, आप अगर फ्रीक्वेंसी बताओगे और सपोज सेट हो गया गलत, तो एटीसी वाला क्रॉस कंफर्म कर देगा कि दिस इज नॉट 11.5, एक बार चेक कर लो। तो एयरपोर्ट पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हिट एंड ट्रायल मारो कि, या फिर आपने अगर कोई मिस्टेक की तो आपको माफी मिलेगी, नहीं। इन एविएशन यू शुड बी प्रिसाइज्ड, यू शुड बी नॉलेजेबल। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये सही फ्रीक्वेंसी है, इसको कॉल किए। तो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि जिस भी स्टेशन को कॉल किया उसका फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर दो।
ताकि एग्जाम में एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ सही स्टेशन को कॉल किया, गलत आदमी को फोन करके टाइम क्यों वेस्ट करना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. So this is the purpose of 4Ws. Now one more thing, I'll give you one more example of a call center training. I was learning to certain kind of reels only, Instagram reels I was going through. There I came to know कि सपोज आपको एसबीआई से कॉल आया या कोई क्रेडिट कार्ड वाला कॉल करता है, तो कैसे बोलता है कि हेलो, एम आई टॉकिंग टू अंकुश, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से रेखा बोल रही हूँ, सपोज ऐसा बोलता है ना कोई भी। उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि व्हेन यू आर कॉलिंग इनिशियली यू शुड से हेलो, कुछ नहीं बोलना है, पहले सिर्फ बोलो हेलो, हेलो सर, हेलो मैम, ऐसा नहीं बोलना है। सपोज आपने बोला हेलो सर और कॉल किसी ने मैम नहीं उठाया, तो आप एम्बेरस होंगे। आपने बोला हेलो मैम और कॉल किसी सर ने उठाया, फिर एम्बेरस होंगे। उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस एक मोमेंट के लिए कम हो जाता है। तो आप पहले बोलो सिर्फ हेलो। अगर उधर से किसी मेल ने रिप्लाई किया, कोई लड़का ने रिप्लाई किया, तो आप बोलो सर। अगर किसी फीमेल ने रिप्लाई किया तो आप बोलो मैडम। अच्छा कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। एंड दिस वाज बीइंग गिवन टू कॉल सेंटर ट्रेनिंग, so you can understand how advanced the future is going to be, how advanced they are going to train even a basic level employee. So in aviation we need to be very accurate. जब वो लोग इतने अच्छे से पढ़ाई करके कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं प्लान के साथ कि पहले खाली हेलो बोलेंगे, अगर लड़के ने बोला तो सर बोलूंगी, और अगर किसी फीमेल ने रिप्लाई किया तो मैडम बोलना है। तो आपको भी इसी तरह से इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आंसर करना है। Am I clear on rules of 4Ws? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, क्लियर टू ऑल। जगबंधु, इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होप यू हैव नोटेड दिस। आपने नोट किया? मींस एवरीवन, रूल्स ऑफ 4Ws, you can take snapshot, screenshot if you want for now. The next is readability scale. अब ये क्या होता है? सपोज आपने कॉमेडी सर्कस या इंडियन आइडल या कोई डांस वाला, कौन सा डांस इंडिया डांस, ये सब आपने देखा। व्हाट यू ऑब्जर्व देयर बेसिकली, कि कोई डांसर आया, डांस किया, जज ने बोला 9 नंबर। किसी सिंगर ने गाना गाया तो एक होता है ना, कोई तो शो है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गॉट टैलेंट, कि वो एक बजर दबाते हैं कि यस यू आर इन, आप पास कर गए, 8 नंबर मिले आपको या 7 नंबर मिले आपके परफॉर्मेंस पे। आप सबने ऐसा कोई ना कोई शो देखे रखा होगा। सो वॉट एवर यू आर परफॉर्मिंग, दे आर गोइंग टू रेट यू कि आपका परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10 कैसा है। सिमिलरली व्हेन वी आर मेकिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, तो जो हम ट्रांसमिट करेंगे, हम जो बोलते हैं उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन, और जो कोई उसको सुनेगा उसको बोलते हैं रिसीविंग। तो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर एंड पे जो कोई बैठा हुआ है, whosoever the person is sitting on the receiver end, they can rate me कि आई एम रीडिंग यू आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 के स्केल पे वो हमको रेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी वॉइस 5 के स्केल में कौन सा स्ट्रेंथ रखता है, आपकी आवाज को मैं कितने अच्छे से सुन पा रहा हूं। ठीक है, और ये जो सुनने की एबिलिटी है, लिसनेबिलिटी, उसी को आरटी में बोलते हैं रीडेबिलिटी। क्योंकि हम ऑडियो कम्युनिकेशन पे हैं तो दैट इज नोन एज रीडेबिलिटी। रिटन नहीं है कि पढ़ के हमको बोलेगा, नो, सुन के बोलेगा, लेकिन उस टर्म का नाम दिया गया है रीडेबिलिटी। दिस इज इन एक्चुअल अ लिसनेबिलिटी, बट इट इज बीइंग टोल्ड एज रीडेबिलिटी। तो कौन सा स्केल है? 5। क्या रहा? स्केल 1, यू आर अनरीडेबल। आपने बात करने की कोशिश की, मैं आपके बात को सुन ही नहीं पाया, कंप्लीटली ब्लैकआउट, अनरीडेबल। रीडेबिलिटी स्केल 2, रीडेबल नाउ एंड दे। आपका आवाज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वॉइस इंटरप्ट हो रहा है। होता है ना कई बार जब मोबाइल पे आप बात करते हो, नेटवर्क लो रहता है तो कट कट के आवाज आती है, मीन्स कभी आ रही है कभी जा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है। सो अगर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, इंटरप्शंस है, सो दैट इज नोन एज रीडेबिलिटी स्केल 2, रीडेबल नाउ एंड देन।
Readability scale 3. Readable with difficulty. What kind of difficulty you can face? If there is a engine noise, if there is a surrounding noise, if there is a crackling sound, burst sound, jet blast का sound. So readable but with difficulty. Noise है आपके voice में. Suppose I am teaching you, मेरे बगल से कोई गाड़ी पास किया रोड से, तो आपको उसके गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा. मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कॉलोनी का कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई डॉग बार्किंग आ रही है, वो सब नॉइज है. मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर फैन का नॉइज इंड्यूस होके आ रहा होगा आप लोगों के पास, सो दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी. मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, माइक को मुंह में चिपका के बोल रहा हूँ, मेरा आवाज आपके तक एक नॉइज बन के आ रहा है. आई एम नॉट प्लीजेंट, मेरी आवाज आपको अच्छी नहीं लग रही है. सो मीन्स आई एम रीडेबल बट विथ डिफिकल्टी, आपको प्रॉब्लम हो रही है. नेक्स्ट वन इज रीडेबल, यस, ठीक है. एंड फिफ्थ वन इज परफेक्टली रीडेबल. नाउ यू कैन आस्क कि व्हाट इज रीडेबल एंड व्हाट इज परफेक्टली रीडेबल. व्हेन यू वर इन प्राइमरी, ठीक है, इन प्राइमरी स्कूलिंग, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते थे एग्जाम में, तो टीचर हमको नंबर दिया करते थे और क्लास में लिख दिया करते थे गुड या वेरी गुड. ऐसा हम लोग को मिलता था ना बचपन में कॉपी पे. गुड और वेरी गुड में जो डिफरेंस है वही है रीडेबल और परफेक्टली रीडेबल में डिफरेंस. होता है कई बार जब आपको कॉल आता है तो आप ऐसा फेस करते होगे कि सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है, यू आर गेटिंग इट, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कई बार बोलते हो कि थोड़ा जोर से बोलो यार, ठीक है. हैवंट यू नोटिस इट? आप बोलते हो कि थोड़ा और जोर से बोलो. तो यहां जो एक कॉन्फ्लिक्शन बनता है ना, कि अगर आप थोड़ा और जोर से बोलोगे तो बेहतर रहेगा. क्यों? क्योंकि आप जो धीरे धीरे बात कर रहे हो ना, उसको समझने में मुझे दिमाग पे जोर लगाना पड़ रहा है. सो दैट इज 4. ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बट और बेहतर हो सकता है, ठीक है. आपने शर्ट साफ किया, ठीक है, आपने आयरन भी कर दी उस पे, तो आपने आयरन कर दी, परफेक्टली स्मार्ट. आपने साफ किया तो क्लीन है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर शर्ट क्लीन है तो बोलोगे गंदा है, नहीं, बट आयरन वगैरह कर दी तो आप बोलोगे यार चमक रहा है. सिमिलरली, इफ समवन इज ट्रांसमिटिंग, एवरीथिंग इज ओके, 4. बट अगर कहीं से गुंजाइश है, इफ देयर इज अ चांस कि थोड़ा और बेहतर बोले तो कितना अच्छा, सो दैट इज ऑन रीडेबिलिटी स्केल 4. एंड 5 परफेक्टली रीडेबल, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. आपने जो बोला मुझे समझ में आया, आपके वर्ड मुझे समझ में आए, आप जो कहना चाहते हो उसका मीनिंग समझ में आया, मीन्स रीडेबिलिटी स्केल 5, ठीक है. नाउ इफ वी आर रिसीविंग कम्युनिकेशन ऑन 4 and 5, ग्रीन सिग्नल, गो अहेड विद द कम्युनिकेशन, बात करो. बट इफ वी आर रिसीविंग एनी कम्युनिकेशन आउट ऑफ 3, शुड नॉट प्रोसीड, आगे मत बात करो, पहले अपना रेडियो सिस्टम ठीक करो. कंफ्यूजन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. वो हो सकता है बोले नॉट अप्रूव्ड, आप समझ लो अप्रूव्ड, ठीक है. वो बोले अल्फा, आप समझ लो ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, किसी भी टाइप का मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. शुड नॉट प्रोसीड इफ यू आर ऑन रीडेबिलिटी स्केल 1 to 3. You can proceed if you are on 4 or 5. Am I clear to all? अभी देखो, बुलेट की आवाज आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज, रीडेबिलिटी स्केल 3, ठीक है. Yes, sir. Now you can ask very smart question कि सर what is रीडेबिलिटी स्केल 1? अगर किसी के बात को मैंने सुना ही नहीं तो मैं बोलूं किसको कि मैं तुमको सुन नहीं पा रहा हूं. सपोज रीडेबिलिटी स्केल 1 क्या कहता है? अनरीडेबल, पता ही नहीं चला कि बोल क्या रहा है या कौन बोल रहा है, तो मैं किसको बोलूंगा रीडिंग यू 1? आपको कैसे पता कि कौन कॉल कर रहा है? तो रीडेबिलिटी स्केल 1 कहता है अनरीडेबल. सो यू कैन हैव सेल्फ डाउट कि इफ समवन इज अनरीडेबल तो मैं बोलूंगा किसको कि रीडिंग यू 1, किसको बोलना है, ठीक है. ये हम लोग कब यूज करते हैं या जनरल सिनेरियो में कब होता है कि जब आप एयरक्राफ्ट में बैठ के पुश टू टॉक स्विच प्रेस करते हो या ट्रांसमिशन का स्विच प्रेस करते हो, जो भी आपका स्विच है कम्युनिकेशन के लिए. तो आपके पीटीटी स्विच होते हैं एयरक्राफ्ट में, कंट्रोल कॉलम पे होते हैं, या अगर आपका हैंड माइक है, बूम माइक है, तो माइक के पास होता है ट्रांसमिशन का स्विच. एक बार में वीएचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो एयरक्राफ्ट में दिए गए हैं, एक बार में या तो ट्रांसमिट कर सकता है या रिसीव कर सकता है.
जब आप बटन को प्रेस करके ट्रांसमिट करोगे उस टाइम पे रिसेप्शन बंद हो जाता है, आपको सुनाई नहीं देगा। और जब आप बटन को छोड़ के रिलीज करके सुनते हो तो आप ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। तो बोलने के लिए प्रेस करके बोलना पड़ता है। और जब आप प्रेस करते हो तो उस टाइम पे एक क्लिक साउंड आता है हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, आप ऐसे ही 4-5 बार बटन प्रेस करो पुट्टू, आपके स्पीकर में कट 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 सुनाई देगा। ठीक है, क्लिक साउंड आएगा हमेशा। तो आपने, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट या ऑलरेडी टेक्नीशियन हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रन पे है या चालू है, ठीक है, उसमें एक हिसिंग या हमिंग साउंड रहेगा हमेशा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर ऑन है तो उसमें एक हिसिंग या हमिंग साउंड आएगा। ठीक है, तो सपोज आपको कहीं से हिसिंग या हमिंग साउंड आ रहा है, कहीं से क्लिक क्लिक के साउंड आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो स्टेशन कॉलिंग विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक रीडिंग यू 1, कि जो कोई स्टेशन हमको कॉल कर रहे हो, मैं आपको सुन ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, स्टेशन कॉलिंग विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक, जो भी स्टेशन रेडियो सियरा माइक को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम रीडिंग यू 1, नहीं सुनाई दे रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो आई थिंक 2-3 टॉपिक हमने पढ़ा दिया। दिस इज फॉर 2 lectures आई गेस। लेट मी सी जस्ट द लेक्चर प्लान, हैड आई स्टिक टू इट और हैड आई मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक क्लास है, बिगिनर्स को मैंने चांस दिया है टिल 15, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊं, नहीं तो फिर किसी का छूट जाएगा। सो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हमने आधा कवर किया है। विल सी 1 मोर टॉपिक, 2 मोर टॉपिक, लेट्स सी। 2 घंटे का क्लास है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस वीडियो विल बी रिकॉर्डेड एंड शेयर टू ऑल, ताकि न्यू कॉमर्स को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े। हालांकि मैं, अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा आफ्टर 15th, तो 15th से मैं उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद फिर एडमिशन ब्लॉक हो जाएगा। नो न्यू एंट्री, नो न्यू कॉमर्स। ठीक है, सो these 2 topics are clear to you: readability scale, rules of 4W, and the basic definition radio station. होप आई एम क्लियर टू दिस। और जो मैं बोलता हूं, लाइक जो मेरा बोलने का तरीका है, मेरा एक्सेंट, मेरा स्पीच, रेट ऑफ स्पीच, आर ऑल थिंग्स आर कंफर्टेबल टू यू गाइज, और शैल आई नीड सर्टेन काइंड ऑफ चेंज? मेरी इंग्लिश समझ में आती है बिकॉज आई बिलोंग्स टू बिहार, सो मेनी ऑफ यू कैन से कि सर आपकी इंग्लिश नहीं पल्ले पड़ती है। बी ऑनेस्ट, इंग्लिश समझ में आती है, बोलने का तरीका समझ में आता है, स्पीच, लाउड, धीरे, फास्ट, स्लो, ये सब कंफर्टेबल हो आप लोग? यस सर। ठीक है, यस सर, नो नीड टू चेंज। ठीक है। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेज द स्टेशन। नाउ रेज द स्टेशन का क्या मतलब हुआ? रेजिंग मतलब होता है उठाना। ठीक है, आपको सुबह सुबह सूरज बाबा क्या करते हैं, उठाते हैं आपको, तो आपको उठाना। या फिर इसको ऐसा समझो कि रेजिंग द स्टेशन मीन्स नॉकिंग द डोर। दरवाजा खटखटाया, सपोज आपका कोई कुरियर आया, तो दरवाजा खटखटा के बोलेगा सर फ्लिपकार्ट से आया हूं, बस इतना ही बोलेगा। या आपको फ्लिपकार्ट से किसी ने कॉल किया तो बोलेगा अंकुश कुमार बोल रहे हो, फ्लिपकार्ट से आया हूं, इतना ही बोलेगा। फिर जब आप कंफर्म करोगे ना कि हाँ मैंने कुछ ऑर्डर किया था, बोलो आप कहाँ पे हो, मैं तो घर पे ही हूँ, इस टाइप से जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे, देन वो कम्युनिकेशन फर्दर प्रोसीड करता है। सपोज आप किसी अननोन के घर जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, कॉल बेल प्रेस किया, छोड़ दिया। ठीक है, दरवाजा खटखटा के छोड़ दिया, वेट फॉर द रिस्पॉन्स कि उधर कोई अवेलेबल भी है कि नहीं। सिमिलरली रेजिंग द स्टेशन मीन्स सिंपली रेज द स्टेशन बाय यूजिंग 2W। 2W क्या है? फर्स्ट W इज whom आर यू कॉलिंग, आप जिसको कॉल करना चाहते हो उसका कॉल साइन बोलो, आप कौन हो, आप अपना कॉल साइन बोलो, एंड वेट फॉर द रिप्लाई। दिस मच इज इनफ। जब भी फॉर द ऑलरेडी टेक्नीशियन, सपोज यू वांट टू टेक द कॉल फॉर ग्राउंड रन, तो आप पहले बार में सिर्फ बोलो बेंगलोर टावर विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक, चलेगा, उधर से अपने आप रिप्लाई कर देगा रोमियो सियरा माइक बेंगलोर टावर। मतलब आपने रेज किया स्टेशन, उधर उसने बोला यस प्रेजेंट सर, बोलो। क्लास में जब अटेंडेंस लगती है तो क्या करते हैं, वो स्टेशन रेज करते हैं।
ऋतिक कुमार आप बोलते हो प्रेजेंट सर। सिमिलरली, ठीक है, यू नीड टू सिंपली से, suppose I want to call Mumbai ground. Ground is a department of ATC. I will come this topic, don't be worried, ठीक है। ground is a department of ATC. So I am at Mumbai airport and I want to call Mumbai ground ATC. तो मैं बोलूंगा Mumbai ground Victor Tango Alpha November Kilo. Alpha November Kilo is the call sign of mine. W1 W2, that's it. इसको बोलते हैं रेज द स्टेशन। और उधर से जो रिस्पॉन्स देगा वो भी W4 का प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, ठीक है। आप किसको कॉल कर रहे थे? मुंबई ग्राउंड को। आप कौन थे? विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, तो आप थे W1, W1 था मुंबई ग्राउंड। जब वो रिस्पॉन्स देगा, वो किसको रिस्पॉन्स देगा? आपको। तो आप हो गए उसके लिए W1 और वो खुद हो गया W2। तो जो कोई भी कम्युनिकेशन होगा दैट विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ W's। विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो मुंबई ग्राउंड, W1, W2. This is known as raging of a station. Am I clear on this topic? Yes, sir. पक्का समझ में आया सबको? और shall I repeat on this? सिर्फ W1 and W2 बोलना है। हाँ, रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सी, W1 एंड W2 का यूज करके जो हम कॉल देते हैं इसको बोलते हैं रेजिंग द स्टेशन। रेजिंग द स्टेशन का मतलब हम सिर्फ उस स्टेशन को कॉल लगा के अपना इंट्रोडक्शन देके छोड़ देंगे कि मुंबई टावर, सॉरी मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, कि मैंने मुंबई ग्राउंड को कॉल लगाया है और मैं हूं विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। अगर ये कॉल सही जगह पे लगा है तो उधर से रिस्पॉन्स आएगा। तो उधर से रिस्पॉन्स जो आएगा वो भी रूल्स ऑफ 4Ws को ही फॉलो करेगा। वो भी बोलेगा विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो मुंबई टावर। टोटल ये कैसा हो गया? मुंबई टावर उधर से बोला यस सर, प्रेजेंट सर। सिमिलरली कि हमने जब अपने एयरक्राफ्ट में फ्रीक्वेंसी सेट की तो हमने चेक करना चाहा कि सपोज हमने ग्राउंड रन का कॉल देऊंगा, तो हमको अगर कभी बात करनी पड़ी तो 1 मिनट या 2 मिनट का कॉल लग सकता है। पहले ये तो चेक कर लूं कि सही स्टेशन को कॉल लगा है कि नहीं। तो उस चेक करने के लिए हम स्टेशन को रेज करते हैं कि ये हमने फ्रीक्वेंसी सेट की, देखता हूं मुंबई टावर ही उठा रहा है या कोई और उठा रहा है। अगर वो मुंबई टावर नहीं है तो उधर से बोलेगा नहीं ये मुंबई अप्रोच है, तो आप फिर से फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे कि ठीक है सर गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। सो रेजिंग द स्टेशन मीन्स सिर्फ W1 एंड W2 कि मुंबई टावर मैं विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो बोल रहा हूं, जगे हुए हो क्या? ठीक है, अगर वो जगा हुआ है तो बोलेगा विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो मुंबई टावर, बोलो क्या बात है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रेजिंग द स्टेशन। सिंपली नॉक द डोर एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। क्लियर टू ऑल? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। So I think this much is enough. Another topic, readability check, we'll take it tomorrow. ठीक है, एक ही दिन में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आज 2-3 लेक्चर धीरे धीरे जाते हैं, न्यू कमर्स को मौका देना है, नहीं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। कल एक दिन और, आज है 14th राइट, कल एक दिन और हम लोग लेक्चर ले लेंगे बिकॉज येस्टरडे आई वाज अनएबल टू कंडक्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेंट आउट। कल एक दिन और हम लोग ले लेते हैं डेमो। कल के बाद एडमिशन तो डेफिनेटली क्लोज रहेगा ही, और कल के बाद हम लोग कंटिन्यूअस अपने प्लान के अकॉर्डिंग, लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग, जो कैलेंडर मैंने आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। वो कैलेंडर मैं आप लोगों को शेयर करके रखूंगा। इवन आई थिंक मैंने शेयर कर ही दिया बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आप भी अपना ग्रोथ मॉनिटर करो टॉपिक वाइज। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई टॉपिक मैं पढ़ा ही नहीं, तो आप भी तो उधर से मेरे को बोलोगे कि आपने पैसा लिया है, ये टॉपिक आपने क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, सो बी रिस्पॉन्सिबल, योर एग्जाम, आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, मुझे बताओ कि सर आपने लिखा था लेक्चर प्लान, लेक्चर 5 में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो वो कैलेंडर मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसी के हिसाब से पढ़ाओ। या सपोज मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा ढीला हो गया, हालांकि ऐसा आता नहीं है, आई ऑलवेज
स्टिक टू एंड डिसिप्लिन टू द कैलेंडर। सपोज मैं 10 दिन क्लास ले रहा हूँ और 3 लेक्चर का ही टॉपिक खत्म हो पाया, तो आप बोलोगे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, एग्जाम नजदीक आ गया, ठीक है, या बहुत फास्ट पढ़ा दिया सर, 5 दिन में 10 लेक्चर पढ़ा दिया, इतना कैसे मैनेज, सर के ऊपर से चला गया, ठीक है। सो बी स्टिक टू द कैलेंडर, ग्रोथ योर प्रोग्रेस, सॉरी मॉनिटर योर ग्रोथ और प्रोग्रेस एंड प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली, ठीक है। बी अलर्ट एंड बी डिसेंट फॉर अ मंथ, 1 महीना आप टाइम स्पेंड करो, ट्रस्ट में यू आर गोइंग टू मेक द आरटी रिजल्ट, ठीक है। अगर आप कन्नी काटोगे, टाइम चुराओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, रिजल्ट इज नॉट गारंटेड, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट हो। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपका रिजल्ट हो जाए, डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपका होगा। आपको 1 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कीप इट, रैप अप द सेशन टुडे हियर ओनली, विल सी यू टुमारो, ठीक है। बाकी सारी चीजें यू कैन आस्क मी ऑन डैम रिगार्डिंग द payment or anything, you can ask me on direct message through WhatsApp. So tomorrow one day we'll have demo, and अगर यही चारों स्टूडेंट कल रहेंगे तो विल स्टार्ट फर्दर टॉपिक, विल नॉट रिकैप और रिवाइज, ठीक है। परसों से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे फिर, ठीक है। चलो, सो सी यू टुमारो सेम टाइम 9 o'clock. डन? डन। Okay, done. चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, Good सी यू night. टुमारो।